तो आप डिकोडर पढ़ रहे थे और डिकोडर जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट बड़ा मज़ेदार कंपोनेंट जो है ट्रांसफार्मर के अंदर निकल के आया, ठीक है? और मैं इसी कंपोनेंट को हाइलाइट करना चाहूँगा यहाँ पर। आपने ये कहा कि टेक्स्ट दिया एनकोडर को, एनकोडर वही ने अपना काम करा और इसने दिया डिकोडर को एंड डिकोडर ने आपको अगेन इट प्रोड्यूस द टेक्स्ट। ओके, you gave the text to the encoder, encoder after its processing gave to the decoder, and decoder after its processing produced the output. Okay, as I told yesterday that this transformer architecture was initially used for translation, language translation. Okay, fine. So let us suppose you have given text as an input. Hello, how are you? So it will produce you something. If your target language is, for example, French, so it will produce the words in French. Okay, so this is your target. And the things which we were seeing in case of decoder was very much interesting. It has been told that in decoder you are having two multi-head. One multi-head is for masking. Another multi-head is doing its as usual work. Okay. So what happened? The working of decoder starts from embedding. That means that is quite surprising for me. This step is quite surprising. Why? Because you are available with target. That surprised me. I was expecting I was expecting that I will not be available with the target. In encoder, you got an output which are having the attentions of hello, how are you? The entire information of this. When this thing go into decoder, actually the output which came from encoder will go to multi-head attention. But multi-head attention masking is present below it. If you see the architecture, the output from the encoder is not given to this, it is given to multi-head attention. Okay, and the things starts from here. You gave target as an input. Now again, this is quite surprising theory. Not theory, now it's practical. How should I know the target initially? Yesterday I have shown you an article. Now I'm sharing my entire screen and show you that article again. This was the article. Okay, why I show this article? Because here I am available with numerical values also. This is your decoder block. Okay, and it is saying that outputs mean target. So what it is saying, there are five components of the decoder. I just yesterday only I told positional encoder, masking, attention, encoder, decoder attention, feed forward, and final linear layer. Yesterday only I explained. The step number one is positional encoding. This is from where we have to start from the decoder. The positional encoder of the decoder operates similarly to the counterpart of encoder.
encoding the target language sentence instead. That means I need to encode target. And this is the English sentence. The dog bar at the cat. Its target is Le Chen, a boy, you chat. This is your target. So, how I came to know about this target, that is a question. How I came to know. Yesterday, I spoke that, okay, my transformer model is already trained on huge amount of data. Already trained. So it might be knowing the translations. Okay, it might knowing the translations of this is a English word, so this is a French word for it. This is the English word, this is the French word for it. Okay, so I think outputs. It is talking about the outputs, or it is talking about the target, which is mentioned here. This one. We need to use this for encoding, embedding. Okay, here it is. So what it did first, the French translation, these words. Let us suppose these are these French words. It performs token of it performs vocab of it, then it performs embedding of it. That is the word embedding. Then it found positional embedding also of it, positional embedding of it. This is what the task done at positional embedding layer. Okay, and you are seeing here as an output. This is the task. Okay, so these are the word vectors first, and then these are the position vector, position embedding, and then word is added with position. Fine. Word embedding is added with position embedding. This is the same task which we did in encoder multi head attention prior the embedding step. We did the same thing. And here also it is doing the same thing. I am just assuming that my decoder knows that this will be the target. These will be the words. This is the translation. These will be the outputs. Okay, just assuming here. And all embedding done. Then these embeddings are normalized. Okay, as per my, okay, not normalized at the moment, they are directly given to the head. Mass multi head. They are given directly to the head, not normalized at the moment. Okay, so step number two is this mass multi head attention. So, what will happen in the mass multi head attention? First, you will be calculating the attention score of what? Attention score of these targets. Now, targets are having word embedding plus position embedding. These vectors they are having. Okay, every word, Lee, Chen, and जो भी है, they are the vectors. Okay, so they are having word embedding and positional embedding both. Word embedding, positional embedding both. ऐड कर दिया ना दोनों को, तो ये वेक्टर बन गया पूरा. This is the vector. ठीक है. ये जो मुझे मिला, this thing. Okay, I am forwarding it to the masking. मास्क वाले पर फॉरवर्ड करा.
अब वो क्या करेगा, मास्किंग का जो भी आपको पता ही है, दीज वर्ड्स ले, चैन एंड जो भी हैं वो, ले, चैन, इनकी मैट्रिक्स बनाएगा और इनकी जो वैल्यूज हैं, ओके, हियर, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, दैट मीन्स आई विल बी डूइंग अ डॉट प्रोडक्ट विद ले एंड चैन, आई विल बी डूइंग द डॉट प्रोडक्ट विद चैन एंड जो डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो वेक्टर्स हैं इनका डॉट प्रोडक्ट विल बी डन, ओके, और यहां पर वी विल पुट द एंट्रीज, ओके, यहां पर एंट्रीज पुटअप करेंगे डॉट प्रोडक्ट करके। बट दीज विल बी ह्यूज वैल्यूज। तो मल्टी हेड अटेंशन बोलता था कि सर इसको नॉर्मलाइज करो, डू द नॉर्मलाइजेशन। वो तो इंटरनल प्रोसेस है, वो आपको आर्किटेक्चर में इट विल नॉट बी शोन, ये मल्टी हेड में, ये हियर इन द मल्टी हेड अटेंशन आपको दिखेगा नहीं, वो इंटरनल प्रोसेस ही है। सो बोला जाएगा कि नॉर्मलाइज करो, देन उसको शॉर्ट मैक्स के अंदर दो, एंड देन व्हाट यू आर गेटिंग दैट विल बी द फाइनल अटेंशन स्कोर्स। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि वो हो गया सब, ठीक है, एंड आई एम गेटिंग ये जो मैट्रिक्स था उसके ऊपर ये सारा काम हो गया, दैट वी हैव सीन इन अटेंशन मैकेनिज्म ऑल्सो। तो यहां पर अटेंशन मैकेनिज्म उस पर अप्लाई हो गई, वो हो गया। सो दीज आर द अटेंशन स्कोर्स आई एम गेटिंग। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? फर्स्ट टेल मी दिस थिंग, yes or not? You have learned attention mechanism, I am applying the same attention mechanism here. Do you have any doubt? Then please let me know. Yes, sir. ठीक है, Okay. इट्स ओवर नाउ। अब क्योंकि मास्किंग था तो इसने बोला कि आई विल बी टेकिंग वन मोर मैट्रिक्स जो कि सेम डायमेंशन की होगी एज ऑफ द अटेंशन स्कोर्स, और उसके अंदर सेम की होगी, उसके अंदर what we will be doing, we'll fill okay, we'll fill this thing, बाकी को माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, विल फिल दीज टू माइनस इन्फिनिटी विल फिल दीज थ्री माइनस इन्फिनिटी एंड विल फिल और, ये वाली मैट्रिक्स होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ मास्किंग मैट्रिक्स। ये वी विल टेक एंड वी विल ऐड दिस मैट्रिक्स टू दिस मैट्रिक्स, ऐसा करेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो जो स्कोर्स आए थे, ओके, आई थिंक आई हैव शेयर्ड द एंटायर स्क्रीन ना, आपको दिख रहा है ना सब? ठीक है, तो अब जो स्कोर्स आए थे वो इन्फिनिटी में बदल गए, ओके, दीज वैल्यूज विल बी कन्वर्टेड इनटू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, एंड यहां पर वैल्यूज होगा, यहां पर वैल्यूज होगा रेस्ट ऑल आर इन्फिनिटी, एंड देन फिर इसी को ही शॉर्ट मैक्स में वी हैव गिवन ताकि वो इन्फिनिटी जीरो हो जाए। तो द अपडेटेड मैट्रिक्स विल बी लाइक, updated matrix will be like ये 0 0 0 0 0 0 and here I am having the values, this is the updated matrix, that means this is lay, तो ले के बाद क्या है मेरे को पता नहीं, तो फिर ये चैन, तो ले एंड चैन, उसके बाद क्या है आई डोंट नो। तो हमने मास्किंग उसको अटेंशन जो बाद के वर्ड्स हैं दे ऑल आर जीरो ईयर, मतलब एक के बाद एक, ये कर दिया हमने। दिस इज वॉट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस अटेंशन, दिस मास्किंग अटेंशन, ये आउटपुट हमको मिला। ओके, इफ यू चेक, ये यहां से आउटपुट मिलेगा, मल्टी हेड अटेंशन, मास्क मल्टी हेड अटेंशन। इफ यू चेक द रेफरेंस, हियर इज आवर रेफरेंस, इफ यू चेक इट, मल्टी हेड में क्या करा उन्होंने कि ये डॉट प्रोडक्ट करे, देखो, अच्छा एक मिनट रुकिए, ये वाली स्टेप नहीं, ये वाली स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, हियर
ठीक है, ऐसा करके कुछ जो है वो बोल रहा है, ये बनाया उन्होंने। The outputs of the attention head are concatenated, resulting a final output vector for each word in a sentence. The exact process is very much difficult, complex. तो उसने तो explain नहीं करी, लेकिन हम समझ गए। हमारे पास we are having one more reference, जिसके माध्यम से अपन समझ गए कि अंदर क्या हुआ है, what happened, ये हुआ है, ये। Got it? अच्छा, एक बात मैं बताना था, वो स्टार्ट से शुरू करेंगे, है ना अपन। डोंट इग्नोर दिस थिंग दैट इन डिकोडर ना, विद स्टार्ट द थिंग्स फ्रॉम दिस ओनली। ठीक है, ये टोकन विल बी देयर। ओके, तो वी गॉट द रिजल्ट एज, ठीक, ये अपने स्केल्ड स्कोर्स थे, लुक अहेड में करा, ये मास स्कोर्स आ गए, एंड द मास स्कोर के बाद उसको शॉर्ट मैक्स में दिया, तो ये ऐसा आ गया। द वन विच आई एम शोइंग यू राइट नाउ इज दिस ओनली, ये वही है, दिस वन। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और नाउ वी आर फॉरवर्डिंग दिस थिंग टू द नेक्स्ट मल्टी हेड अटेंशन, इसको दे दिया अपन ने। सर यस बोलिए। so we are applying look ahead mask हाँ for preventing it to know the future हाँ, न्यू द predictions. फ्यूचर प्रेडिक्शन, बस ये काम है इसका, टू Okay. प्रिवेंटिंग इट टू नो द फ्यूचर प्रेडिक्शन, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग अ लुक अहेड So mask. it will predict. So we will expect the model itself to predict what should be the next word. Okay, however, the thing which surprised me is we are already taking the target and we are working that on target only. Okay, Sir, I think that is वो quite training procedure होगा. surprising. ओके, हाँ सर, वो एनीवेज training. इसका प्रोसेस तो पूरा फिनिश कर लें अपन। ठीक है, Okay. तो भाई ये सब हुआ, फिर सेकंड मल्टी हेड पर गए अपन, ये उसने दे दिया सब लगा लुगू के। इट गेव अस द रिजल्ट लाइक अप्लाइंग ऑल after multi-head attention, it did applied its layers, normalization and everything, and then it gave it to the this layer, multi-head attention, इस पे दे दिया उसने। एंड इन मल्टी-हेड अटेंशन, अब देखो खेल हुआ, अब खेल हुआ दूसरा तगड़ा। क्या खेल हुआ? आपने आपने ये दिया ना, ये दिस मैट्रिक्स यू गेव, एंड जो सेकंड मल्टी हेड अटेंशन है उसमें एनकोडर से जो आउटपुट मिला था, दैट इज ऑल्सो यू आर गिविंग एज एन इनपुट टू द डिकोडर। द वन विच यू गॉट फ्रॉम द एनकोडर, नाउ यू आर गिविंग इट एज एन इनपुट टू द डिकोडर इन दिस मल्टी हेड, नॉट द प्रीवियस वन, इन दिस यू आर गिविंग। ओके, तो इसने क्या करा, ये देखो, इसने बोला कि देखिए भाई, ये मेरा पहला वर्ड है ले, आपका इंग्लिश का पहला वर्ड था द, तो लेट मी डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टू फाइंड द स्कोर्स। अभी भी वेक्टर टू वेक्टर ही डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो जो फ्रेंच वर्ड है ले, ओके यू गॉट दिस थिंग ना, ले, या का फ्रेंच वर्ड है ये वाला ले, इसका डॉट प्रोडक्ट, ओके, आई विल बी डूइंग विथ एवरी वर्ड ऑफ द इंग्लिश, द के साथ, डॉग के साथ, आई विल बी डूइंग द सेम, सबके साथ करेंगे अपन। ले डॉट डॉग, ले डॉट बार, ले डॉट एट, ले डॉट द, ले डॉट कैट, सबके साथ यू आर गोइंग टू डू द डॉट प्रोडक्ट, और ये इसके स्कोर्स हैं। देन द सेकेंड वर्ड, उसका भी ऐसे डॉट प्रोडक्ट करोगे, जो फ्रेंच का सेकेंड वर्ड है उसका हर एक इंग्लिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करो। तो इसने कहा व्हेन यू आर डूइंग द डॉट प्रोडक्ट, एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज। ओके, तो द एनकोडर डिकोडर attention layer enables the decoder to concentrate on the relevant portion of the input sequence. It considers the interaction between the words from encoder which has been computed to the decoder. Okay, so let us demonstrate the first word le. The first thing what you have to do is to find the compatible scores. So the compatible score between le and the English source sentences. फाइन, तो जो ले है और इंग्लिश के जो वर्ड्स है उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट करा आपने, दैट्स व्हाट यू डिड।
ओके, फाइन, ये आपका काम हुआ. Then you apply softmax over it to normalize the scores. ठीक है, ये रहा softmax. ये आपने softmax लगाया ताकि स्कोर नॉर्मलाइज हो जाए. तो ले द, ले डॉग, ले बाग सबके ऊपर लगा के उसको नॉर्मलाइज कर दिया. एंड देन आप फाइनली यू नॉर्मलाइज द वैल्यूज एज डेमोस्ट्रेटेड अबाउ. यू कैलकुलेट द कंटेक्स्ट वेक्टर. The context vector captures the crucial information from the encoder block that the decoder needs to generate for the translation in lay. To calculate the context vector, you can perform element wise addition. This is your element wise addition. वो कैसे हुआ element wise addition? What you got? 0.134. This is what you got ना. And 0.134 you have to multiply it with the vector of whose vector? Whose vector? Please check. कहाँ पर आया ये? ये वेक्टर्स हैं. 0.1438, 1.01. अब ये वेक्टर कहाँ है इसने तो मेंशन नहीं करा. ठीक है, 0.134 ये सिर्फ ले का निकला है, ओनली फॉर ले. एंड 0.206 कोई मेंशन, ये रहा 0.206 ले और डॉग का. देन 0.29 ले एंड बाग्ड का. देन 0.324 ले एंड एट का. फिर ले एंड द का. एंड देन ले एंड कैट का. ये जो आए हैं आपके स्कोर्स आए. एंड यू नो दिस थिंग. कंटेक्स्ट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू. अटेंशन, ये अटेंशन ही हुआ है, पूरा अटेंशन मैकेनिज्म ही हुआ है. अटेंशन मैकेनिज्म. द ओनली डिफरेंस हियर इन द अटेंशन मैकेनिज्म इज you are taking a French word and you are taking every English word given by encoder. Okay, so you first found the dot product of lay with every word, hello, how are you, whatever be the thing is. Then you have normalized it by applying softmax. You got some values. तो वहां यही करते थे ना, पहले अपन करते थे q डॉट के. यू गॉट सम अटेंशन स्कोर. इसी अटेंशन स्कोर को आप शॉर्टमैक्स में देकर नॉर्मलाइज कर देते थे. दैट्स व्हाट यू डू. इसी अटेंशन स्कोर को शॉर्टमैक्स में देकर नॉर्मलाइज कर दिया. दिस इज द नॉर्मलाइज स्कोर्स. और इन्हीं अटेंशन स्कोर को वापस से यू परफॉर्म द डॉट प्रोडक्ट विद वैल्यू. तो ये जो डॉट प्रोडक्ट विद वैल्यू करा है ना, ये वो कर रहा है. दिस इज, ये कंटेक्स्ट वेक्टर निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट विद वैल्यू हो रहा है. तो ये आपका अटेंशन स्कोर है नॉर्मलाइज. दिस इज अ वेक्टर, वैल्यू यानी वेक्टर. ठीक है, तो सबके वेक्टर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ता है. यू वेरी वेल नो. अगेन वो क्या था, हम लेते थे v1 v2 v3 v4 एज अ key. We take query as v1. We first perform q dot k, that means v1 dot v1, v1 dot v2, v1 dot v3, v1 dot v4. ये लेते थे अपन. ठीक है, ये काम करते थे. तो q डॉट k में आपको मिलता था w, दैट इज अटेंशन स्कोर या w बोलूं मैं, जो भी आप कहना चाहें या आप कह सकते हैं. फिर आपको जो वेट मिला है इसे आप उन्होंने कहा गिव इट टू शॉर्टमैक्स फॉर नॉर्मलाइजेशन. उसको 0 से 1 में कन्वर्ट कर दो आप. ये काम आप कर दो. ठीक है, तो भाई हमने कर दिया. तो मुझे अपडेटेड अटेंशन स्कोर मिल गया फ्रॉम द शॉर्टमैक्स, जो कि 0 से 1 के बीच में. ये मिल गया. देन दिस अटेंशन स्कोर will be taken to perform the dot with value. What is the value?
Value is the vectors of English words. आप ये देख रहे हो ना, जो ये कि सर ये 0.48 0.29 ये कहाँ से आया है, ये भाई ऊपर बता रहा हूँ मैं, ये जो अंग्रेजी के वर्ड है ना ये, ठीक है, कौन से, द, डॉग, बार्ड, एट, द, कैट, वो जो पहला वाला मल्टीप्लिकेशन है ना, वो द के वेक्टर से मल्टीप्लाइड है, फिर डॉग के वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन वाज डन, देन बार्ड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, देन एट का जो वेक्टर है, एंड देन कैट का, और ये तो वो उनके वेक्टर्स हैं, क्योंकि यू विल नॉट, ये कोई बता समझा ही नहीं पाएगा आपको कि भाई ये 0.48 0.92 पॉइंट ये कहाँ से आए हैं, फ्रॉम वेयर दे केम। मेरे तो नॉलेज में यही लग रहा है, क्योंकि क्योंकि हियर query is ले, my key is, what is my key, my key is I perform the dot product with all the English words of ले, इनके साथ ही डॉट प्रोडक्ट करा था मैंने, एंड देन आई गॉट द अटेंशन स्कोर, ठीक है, मिल गया, उसको मैंने शॉर्ट मैक्स से नॉर्मलाइज कर दिया, ये भी मुझे मिल गया, दैट ऑल्सो आई गॉट इट। इसके बाद अब भाई Q के V होता है, तो V क्या है, व्हाट इज V हियर, व्हाट इज द वैल्यू हियर, ये तो बता दो मुझे, व्हाट इज द वैल्यू हियर। तो आप इफ यू कम ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेप, इफ यू जस्ट चेक इट, ठीक है, ये दिखा आपको 0.48 0.92, ये भैया ये द का वेक्टर है, द का, ठीक है, तो तुमने ये जो शॉर्ट मैक्स निकाले हैं ना, ये नॉर्मलाइज, इनको अब इंग्लिश द वर्ड्स वेक्टर्स यू हैव टू परफॉर्म द डॉट प्रोडक्ट विद देम, ये है वैल्यू। अभी बात समझ में आई, टेल मी यू अंडरस्टूड दिस थिंग और नॉट। यस सर। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाले हैं, मैं लिख ही देता हूं, वैल्यू इज वेक्टर ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। ये तो ले के साथ काम किया तुमने, अभी चैन के साथ और करना है, यू हैव टू, चैन को अब ले लो V1, और बाकी वो इंग्लिश वाले वो जो है वो V1 V2 V3 V4, ये करो करो डॉट प्रोडक्ट इनका सबके साथ, वही पूरा टेंशन पूरा लगाना है, सेम, दैट्स व्हाट यू हैव टू अप्लाई। सर यस प्लीज से। सर बस कंफर्म करने के लिए, हमारा के में भी सारे इंग्लिश वर्ड्स है और वी में भी इंग्लिश वर्ड्स है। हाँ, के में भी वही है, देखो यस व्हाट वी डिड ओके। इन के में भी यही है, ये देखो ये द का ही वेक्टर है, ये भी ये डॉग का वेक्टर है, ये बार्ड का वेक्टर है, यहां देखो ये द का वेक्टर है, ये डॉग का वेक्टर है, एंड दिस इज योर बार्ड वेक्टर, मैच कर लो वही आएंगे, ठीक है, बस मैं वो दिख ही जाएगा अपना आप, मैच करोगे ना वही नजर आएंगे, वही है, ठीक है, गॉट इट। यहाँ क्या खेल हुआ मालूम है, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स द डिफरेंस, व्हेन वी यूज एनकोडर, व्हेन वी यूज एनकोडर अटेंशन, जब अपन एनकोडर ब्लॉक पे थे, तब इन दैट पर्टिकुलर केस क्यू के वी जो था, दैट इज फॉर द सेम इंग्लिश, फॉर इंग्लिश ओनली, इंग्लिश टू इंग्लिश वी वर टॉकिंग अबाउट, but when we are in decoder level, now the things got changed, we are interpreting the similarity between French and the English, this is the change we did. At the encoder we were talking at the attention of English to English only, but here in case of decoder we are talking about English to French, that is the difference. Okay, and then after performing this step for each and every word, each and every French word, after performing this step, okay, these are the context vectors, we got it.
and then they are concatenated. The concatenation has been done. Concatenation means, what is a concatenated Lie? Concatenated vector of Lie 1.5. This is what I got new, and this is what the original one. Originally, we did perform the concatenation, which we got from masking. That's what we have concatenated. Check the architecture. Check the architecture. Okay, again, let me show you the architecture. Okay, whatever be the output you got from here, from masking, and whatever be the output which you got from here in multi-head. Okay, this is given as an input and concatenation has been done, add, and then normalized. Okay, so it perform the concatenation. So ये आपको अभी करंट में मिला, दिस वन करंट फ्रॉम द करंट मल्टी हेड, दैट इज एनकोडर डिकोडर वाला। और ये जो था आपको, दैट इज फ्रॉम द प्रीवियस मास्क वाला। अभी यहां पर तो इसने वैल्यू इंटर कर रखी, इसको टेंशन मत लेना, वी अंडरस्टूड द मास्किंग। ओके, ये मिला, एंड देन फाइनली you are using the this layer, where in this particular layer you gave this as an input। ओके, आपने इसको इनपुट दे दिया, और यहाँ आप कुछ बताने के लिए है नहीं, वो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है और नॉर्मलाइजेशन करना है, और लीनियर लेयर पे चला जाएगा वो। ये फीड फॉरवर्ड पे जो है आपका ट्रेनिंग होगी, न्यूरॉन्स वगैरह वो होंगे, एंड देन नॉर्मलाइज्ड होगा, डेटा नॉर्मलाइजेशन, एंड देन लीनियर लेयर पर आपका डेटा, अगेन ये भी लेयर है जहाँ पर लीनियर एक एक्टिवेशन फंक्शन की तरह ही। दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? लीनियर मीन्स जस्ट लाइक जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू मिल जाएगा आपको, दैट विल बी द लीनियर। ओके, एंड देन शॉर्ट मैक्स। ओके, शॉर्ट मैक्स में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी कौन से वर्ड की कैसी है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है, व्हाट आई एम हैविंग इन दिस नोट्स। ये देखो, ये रहा। सो आपने इसके लीनियर पे दिया, लीनियर के बाद एन क्लास वकैप साइज बन गया, फिर शॉर्ट मैक्स पे गया, एंड एवरी वर्ड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिली है, एंड एट द लास्ट एंड दैट्स इट, ट्रांसफॉर्मर खत्म हुआ, आउटपुट यू गॉट। ठीक है, खास सिर्फ मल्टी अटेंशन तक था। ठीक है, सो आपका ये डिकोडर मल्टी अटेंशन के बाद जो लीनियर क्लासीफायर की तरह काम करेगा, एंड फाइनल शॉर्ट मैक्स विल प्रोड्यूस द प्रोबेबिलिटी। दैट मींस द आउटपुट ऑफ द फाइनल पॉइंट वाइज फीड फॉरवर्ड गोज थ्रू द फाइनल लीनियर लेयर दैट एक्ट एज अ क्लासीफायर। उसमें शॉर्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगा है, तो वो मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए वी आर यूजिंग। ओके, द क्लासीफायर इज एज बिग एज द नंबर ऑफ क्लासेस यू आर हैविंग। एज मेनी नंबर ऑफ क्लासेस, इतना ही बड़ा वो होगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग 10,000 क्लासेस, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग 10,000 वर्ड्स, so the output will be the size of 10,000, and the word which is having the highest probability will be considered. Shortmax layer will give you the values between 0 to 1। ठीक है, तो 0 से 1 की वो हाई देगा, और जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी द वर्ड, प्रिडिक्टेड वर्ड। बस ये काम आपका यहाँ पर खत्म हुआ। जैसे 0.8 आ रही है तो वो कंसिडर कर लेगा 0.8, बस। ठीक है, ओके, ये काम आपका खत्म हुआ। फाइन, ये आपका ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर ही खत्म हुआ। ओके, ऐसी कई लेयर्स होती हैं, कई एनकोडर एंड डिकोडर्स वर देयर, एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। स्टैकिंग होती है। ओके, so they are connected to each other. There are many encoders and the decoders are present, so they do have an stacking। Okay, and here also they did mention after the multi-head, second multi-head, what they told us, ये हो गया आपका, ये पूरा बन गया, and then ये करने के बाद just use the final feed forward network and the final linear layer, that's it, just इनको use कर लो। Upon receiving the concatenated output from the transformer, the vectors are processed through feed forward,
मस्ट लाइक हाउ वेक्टर्स आर हैंडल्ड इन द एनकोडर, जैसे एनकोडर में होते थे उसी तरीके से उनकी प्रोसेसिंग हो रही है फीड फॉरवर्ड में. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फीड फॉरवर्ड इज टू लर्न नॉन लीनियर मैपिंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट by transforming the vectors into their ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशंस. ठीक है, क्योंकि एनकोडर के लिए एनकोडर रिप्रेजेंटेशन था, डिकोडर के लिए डिकोडर रिप्रेजेंटेशन वाज देयर. अब आपने उसको फीड फॉरवर्ड में करके उसके अपने ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया. दैट्स व्हाट यू डिड. So after passing initial vectors through the feed forward, you obtain the modified version, यानी कि फाइनल लीनियर लेयर पर जहां शॉर्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन है, तो आपको ये क्या कर देगा, प्रोबेबिलिटी निकाल के दे देगा. यू जस्ट डू द सेम इन योर डीप लर्निंग. दैट्स व्हाट यू डिड इन द डीप लर्निंग. सेम थिंग हैपेंस. यू आर हैविंग फीड फॉरवर्ड नेटवर्क. तो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में क्या होता है, ये होता है ना फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में. ठीक है, ये होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, सारी चीज़ होती है फीड फॉरवर्ड में. दिस इज व्हाट यू आर हैविंग. और फिर आपके पास यहाँ उन्होंने कहा लीनियर एक लेयर है, तो ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है और यहाँ पर लीनियर एक लेयर है जहाँ पर शॉर्टमैक्स एक्टिवेशन है. शॉर्टमैक्स विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी स्कोर्स. दैट्स इट. इतना वो आपको काम करके दे देगा. ठीक है. एंड इफ यू चेक योर एनकोडर ऑल्सो, हियर यू कैन चेक योर एनकोडर, वो भी यही काम कर रहा था. ठीक है, फीड फॉरवर्ड था वहां पर भी, फीड फॉरवर्ड एड ए नॉर्मलाइजेशन, बस इतना करके दे दिया था. ठीक है, तो मल्टी हेड से जाने के बाद इन एनकोडर you got the whatever be the result you got, you have given into normalized feed forward network. Okay, and in the feed forward network, pointwise feed forward network for further processing. The pointwise feed forward network is couple of linear layers with ReLU activation. तो मैंने कहा ना वही, आपके पास यहाँ पर ReLU एक्टिवेशन फंक्शन है. ठीक है, हियर यू आर हैविंग ReLU 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 एक्टिवेशन फंक्शन. ये फीड फॉरवर्ड है, आगे बढ़ा दो भाई. कपल ऑफ लीनियर लेयर्स. ठीक है, तो फीड फॉरवर्ड में लीनियर लेयर्स हैं, वो कह रहा है लीनियर लेयर ले लो. ठीक है, तो पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज फीड फॉरवर्ड. पॉइंट वाइज मीन्स जैसे आपको मैंने बता दिया था, दीज टू आर द वेक्टर्स. ओके, तो इसका इसके साथ ऑपरेशन, इसका इसके साथ ऑपरेशन, एंड इसका इसके साथ ऑपरेशन. दिस इज पॉइंट वाइज. ओके, तो ये कुछ लेयर्स हैं जहां पर वैल्यूज का ऑपरेशन इस तरीके से विल बी परफॉर्म. कपल ऑफ लेयर्स होंगी, देन नॉर्मलाइज होगा, एंड देन इट विल बी गिवन टू द शॉर्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन फॉर फाइनल आंसर. All right, fine. So that's the thing which I want to talk currently. I will again put it. Okay, let me stop presenting. Let me stop.